Good morning, my dear respected students. And today I'm just begin with the concept that is discussion on PT1 paper. Discussion means when I just post this query in a chat box in WhatsApp group. So I have received some queries that there is a few questions. For example, question number 6, question number 8, question number 9 and question number 12. Some students are saying, sir, can you please elaborate these questions? Yes, so no problem with that. I'm just going to elaborate this one for you all, and it's my humble request that you all are requested to kindly concentrate and participate. मेरे बच्चों, दो important चीजें हैं, कृपया करके ध्यान दीजिएगा that you are requested to concentrate as well as participate. Okay, so chat box नहीं, अनम्यूट करके बताइएगा अपने आप को कि किसने कहा था क्वेश्चन नंबर 6. वेरी गुड. जिन लोगों ने मुझे बोला था कि सर क्वेश्चन नंबर 6 हम विचार करना चाहते हैं हम लोग. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. फटाफट चलो हैंड रेज कर दो, नो प्रॉब्लम, हैंड रेज कर दीजिए. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 6, वेरी गुड. कोई नहीं चाहता क्वेश्चन नंबर 6. ओके, फिर आप चैट बॉक्स में डालिए कौन सा क्वेश्चन चाहते हैं आप. वेरी गुड. I am just going to discuss only those questions which you required to be discussed here in this session. Very good. Chat box में डाल दीजिए, no issues with that. कौन सा क्वेश्चन आप चाहते हैं डिस्कस करना. Very good. आर्ची अनम्यूट करना अपने आप को. यस सर. आर्ची कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, कोई क्वेश्चन नहीं है. सर मुझे 12th क्वेश्चन में डाउट है. वेरी गुड, बाकी सब ठीक है आपके लिए. जशनप्रीत भी 12th डाल रहा है मेरा बच्चा, है ना. ओके, मानवदीप इज अगेन सेइंग 12th क्वेश्चन. सर क्वेश्चन नंबर 12, नो प्रॉब्लम. फिर मैं डायरेक्टली 12 भी स्टार्ट कर देता हूँ. क्या जरूरत है मुझे 6 का डिस्कस करने की, अगर आप सब लोगों को क्लियर है तो, है ना. जैकॉर इज सेइंग सर क्वेश्चन नंबर 9 and 12. ओके, नो इश्यूज विद दैट. देन व्हाई वी आर वेस्टिंग आवर टाइम. खुशी जी is saying that sir can we begin with a 9th question. Yes, why not Kushi ji, we can, no problem, no issues with that. Kushi is also saying, Nupur is also saying. Okay, so ठीक है, ठीक है, ठीक है. मेरे पास क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, the only 2 questions will be there, that is question number 9 and question number 12. No issues with that. Thank you very much. चलो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं. मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ and we just begin with a question number 9 itself. Okay, डियर स्टूडेंट्स काइंडली कंसंट्रेट. मेरे प्यारे बच्चों, कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करने की कृपालता कीजिए. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट हियर. व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस हियर, काइंडली कंसंट्रेट, काइंडली कंसंट्रेट हियर. ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू रीड दिस क्वेश्चन. Write a program that rotates the element of a list. Okay, first of all, very important thing here that we talk about the concept of list here. We are talking about the list here. So the element at the first index moves to the second index. Okay, very good. It means when we talk about the index values, kindly concentrate here, my dear respected students. As in this example, we having I think so we having 5 different values here. So what we are going to do, I'm just going to insert these 5 boxes here, and I'm just going to elaborate this concept for you all. So what we are going to do here, kindly concentrate. I'm just going to mention it as number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5 here. Kindly concentrate. And what I'm just going to do here, I'm just going to increase the size here. Why so? Because it's look good. Okay. After that, what we are going to do here, very important thing here, we are supposed to talk about the index values. That is index values, that is 0. After that 1, after that 2, after that 3, and after that 4. And here it is, I'm again mentioning the indexing here. It says a -1. Okay, and after that it says a -2 here, and it says a -3 here, and it says a -4, and here it is, it says a -5. Okay, मेरे प्यारे बच्चों, कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करने की कृपालता कीजिए. These are the values. मेरे बेटा,
ये जो इंडेक्स है 0 1 2 3 4 ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है कि बैकवर्ड इंडेक्सिंग है? कौन बताएगा? वेरी गुड, फटाफट जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बोलिए। दिस इज टू बी कंसीडर एज अ फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग? कौन बोलेगा? अनम्यूट करिए प्लीज। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। ये फॉरवर्ड है, ओके। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो इंडेक्सिंग है व्हाट वी कंसीडर दिस एज अ, इसको हम बैकवर्ड। अरे वाह, दो लोग तो मिल गए भाई जो लोग बोलते हैं। एक तो गुरप्रीत आ गया, खुशी खेती आ गया, बाकी सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि हम यहाँ पे कुछ नहीं बोलने आए, सिर्फ सुनेंगे और वो भी मन करेगा तो सुन लेंगे। नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज विद दैट, but it's my humble request that you all are requested to kindly participate if you are here, and if you want to learn that particular thing, you are supposed to discuss things. Okay, so what we are going to do here, we are just going to elaborate this, and after that it says, so the element at the first index move to the second index. So what they want here, what is the actual requirement here? Kindly concentrate, my dear respected students. What they want to do here, they just want that this first value is supposed to be moved towards a second location, index number 1. After that, this second value is supposed to be moved here, that is 2. Next it moves here 3. Next it move here 4. But this particular value, they need that particular into a front of that particular. So this is the actual output which is being required here, and how we can get this is the actual purpose, that how we can write the code for the same. मेरे बच्चों को जिनको यहाँ तक समझ आ गया वो हैंड रेज करते हैं फटाफट। जिनको मेरे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गया कि हम किस तरीके से इसकी कार्रवाई कर रहे हैं, और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग क्या है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या है, एंड हाउ वी कैन इलैबोरेट दैट पर्टिकुलर थिंग। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, लॉजिक आपके माइंड के अंदर लॉजिक क्या आ रहा है, हाउ वी कैन डू दिस थिंग। मेरे माइंड के अंदर एक लॉजिक आ रहा है कि हम क्या करेंगे, ये इंडेक्सिंग जो है इसको मूव करना स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 अगले इंडेक्सिंग की तरफ। बट मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि ये फिफ्थ वाला मैं चाहता हूं कि ये अगर मैं 4 को फिफ्थ में डालूंगा तो फिफ्थ इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड। तो मैं क्या करना चाहता हूं, आई जस्ट वांट टू स्टोर दैट पर्टिकुलर इनटू अ पर्टिकुलर वेरिएबल। मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं, फिर सबको मैं क्या करता हूं, मूव करता हूं एक एक स्टेप आगे, और जब मुझे 0 इंडेक्स मिलेगा तो वहां पे मैं वो पर्टिकुलर जिस वेरिएबल के अंदर मैंने ये वाली चीज स्टोर की है मैं उसके अंदर डाल दूंगा। मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात यहां तक समझ आई है हैंड रेज कर दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, खुशी जी, मानव जी, अकुल जी, वेरी गुड वेरी गुड, गुरप्रीत वेरी गुड, संजना विरदी जी। अरे भूलने का कोई अगर चार्जेस है तो मुझे बता देना, मैं भरने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब ये हमारे पास अब हमारे पास ओके है, हमारे पास ये काम समझ आ गया, ठीक है। अब देखिएगा मैंने क्या किया, सबसे पहले देखिएगा स्टेप 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। बेटा किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट दैट यू ऑल आर सपोज टू कंसंट्रेट दैट हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। The concept will be there in your mind. Okay, so what we can do here, step number 1, I'm just begin with the content here. Okay, after that step 2 मैंने step 2 में क्या करना है जरा ध्यान से देखिए, insert a elements of a list here। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, what I'm just going to do here, I'm just going to open this Python window here, and I'm just going to mention 1 by 1 steps here, and then we are just going to write what we are going to perform here. So I'm just going to click here and mention it here, that for example I just take it as a list 1. Okay, after that number 1 it says that I'm starting, and the second it said insert an element in a list. So what we can do here, we just use a evaluate, EVAL, और जो आप data type डालेंगे they automatically accept that particular value. So what we are going to do here, I'm just going to input enter the elements in a list is equal to, and I'm just going to hit that enter. Okay, after that again I'm just going to hit enter, and I'm just going to mention it as a print list 1. सर मैंने सिर्फ अभी तक यहाँ तक किया है, प्लीज आप कृपया करके ध्यान दे दीजिएगा।
अब कवलजीत सर ने क्या किया, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेस F5 and hit the enter key here. What I'm going to do for elaborating this concept, PS practical session, I just want to take it as 25, no problem. Okay, so what it says here, that what I'm just going to do, I'm just going to mention it as a list one here. Hit the enter key here. Kindly concentrate, dear students, and hopefully they just ask me the values. What I'm going to do, if I just mention it like this, for example, देखिए अब मैंने क्या किया, 1 2 3 4 and 5. If I just enter in such a way and hit the enter key and mention type, data type of list one here in our case, and when we are hitting the enter key, it says, because you're not using square brackets, it says that this is a tuple here. Okay, so what we can do here, my dear respected students, here again I'm just going to hit F5, and in that case what I'm just going to do here, I'm just going to mention 1 2 3 4 and 5 and hit the enter here. Now if in that case, if I just mention it as a type and list one here and hit the enter, it says yes, this is a list. मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात यहां तक समझ आ गई, वो कृपया करके मुझे हैंड रेस करके बता दें या अनम्यूट करके बता दें, किसी की आवाज भी सुनने का मन कर रहा है। अगर आप अनम्यूट करके भी कह सकते हैं यस तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हैंड रेस तो हो रहे हैं फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक आधा अनम्यूट करके भी बोल दो यार, ऐसे मत करो, अनम्यूट करके भी बोल दो कि हाँ जी सर आया कि नहीं आया समझ। वेरी गुड, चलिए जी, नो प्रॉब्लम। Okay, after that, what we are going to do here, my dear students, inserting an element in a list. Okay, now what we can do here, step number 3 in our mind is that I just want to store that particular value, that is 5, in a particular variable. So मैंने लिखा store 5 or last value in a वेरिएबल, किसी वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर लीजिए। ओके, सो व्हाट वी कैन डू हियर, आई एम जस्ट गोइंग टू हिट दैट एंटर की एंड आई एम जस्ट गोइंग टू से एंड इज इक्वल टू लिस्ट, एंड हियर इट इज list 1 एंड हियर इट इज -1। -1 सेज, कौन बताएगा मुझे, चैट बॉक्स में बता दीजिए कि -1 के अंदर क्या है। वेरी गुड वेरी गुड, आई एम स्टिल वेटिंग इन चैट बॉक्स। -1 के अंदर क्या है, लिस्ट -1। वेरी गुड, अकुल ने सबसे पहले मुझे मैसेज किया है, दैट इज 5 हियर। एक ने मुझे 4 भी किया है, खुशी खेती जी, खुशी खेती जी इज सेइंग 4। नो खुशी जी, when we talk about -1, it says here it is -1, this will be the value that is 5 here. Okay, so what we can do here, अब मैंने क्या किया, स्टोर 5 और लास्ट वैल्यू इन वेरिएबल मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। कहता ओके हो गया। कहता अब क्या करूं, नाउ just next step, I'm just going to mention here that because I just want to perform a same thing multiple times here, so in that case what we are going to do, I'm just going to use a loop here, and in loop we use the concept of for loop। और अब मैंने किया क्या, प्लीज यहां ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा for I in range। अब रेंज, अच्छा मैं रेंज अब चलूं कहां से यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। रेंज वो कहता है कि तू क्या करना, तू स्टार्ट करना। अगर मैं इसकी लेंथ फाइंड करूंगा तो मुझे लगता है इसकी लेंथ मुझे 5 आएगी, है ना। तो वो क्या कहता है, यू जस्ट बिगिन फ्रॉम लास्ट वन। ओके, मैंने क्या किया, आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन हियर लेंथ ऑफ अ लिस्ट 1, आफ्टर दैट लेंथ ऑफ लिस्ट 1। ओके, एंड देन -1 हियर, -1 बिकॉज मैं चाहता हूं कि एक वैल्यू जो है उसकी माइनस कर दूं, क्योंकि अगर लेंथ देखूंगा तो वो 5 है, बट इंडेक्स वैल्यू अगर देखूंगा तो वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। इट से 0 1 2 3 and 4। ओके, और जाऊं कहां तक जाऊं मैं, इट मूव स्टिल 0 हेयर। पर यार अगर मुझे 4 से 0 की तरफ जाना है तो मुझे प्लस तो नहीं करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, दैट इज a -1। इट सेज आई जस्ट बिगिन फ्रॉम, ये कहता है अगर इसकी बात करूं तो ये मुझे जो है प्रोग्राम ये कहता है कि लेंथ मुझे क्या रिटर्न करेगी, दैट इज 5। ये मुझे 5 रिटर्न कर रही है, बट मैंने क्या कर दिया, दैट इज -1। इट सेज a 4। जाऊंगा कहां तक, 0 तक, और मेरा जो -1 है वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये मुझे
एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगी जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है। ओके, after that what I am just going to do here, I just want, here it is, it says a step number 5 here, pass the value stored in। अब मैं वैल्यूज को पास करना चाहता हूं, तो कृपया करके ध्यान दीजिएगा, अब मुझे कौन सी वैल्यू को कहां पे पास करना है। मुझे फॉर एग्जांपल मुझे जो वैल्यू है आपकी, एक एक वैल्यू आगे की तरफ शिफ्ट करनी है, एक एक वैल्यू आगे की तरफ, जो 0 पे इंडेक्स पे है उसको 1 पे भेजना है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मेंशन किया लिस्ट वन को क्या करें, लिस्ट वन की आई लोकेशन पे जो चीज आप चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, लिस्ट वन हमने यहाँ किया i-1। अब इसका मतलब क्या हुआ, प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा, इस तरफ ध्यान एकाग्रचित कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट वन की बात कर रहा हूँ, लिस्ट वन एंड आई लोकेशन, तो मेरा लूप यहाँ से कहां से चल रहा है, ये लास्ट वाली वैल्यू से चल रहा है 4 से, ठीक है। और ये पास कहां पे करेगा, ये वैल्यूज को कहां पे पास करेगा, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, आई दैट इज 4। अगर मैं इसको यहाँ पे इलेबोरेट करूं आपके लिए, तो मैं इसको मेंशन करूंगा, अगर सिंपल इसको वर्ड्स में मेंशन करना हो, लिस्ट वन इट सेज 4, और यहाँ पे क्या जाएगा, दैट इज लिस्ट वन, here it is, it says 4 minus 1, so it says the value which is being stored in a 4 minus 1, that is in a index value 3 here, and the value itself will be a 4, is supposed to be passed in a value or an index that is a 4, and it says now this 4 is supposed to be this 4 is supposed to be moved here and is going to be stored here in that location। मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात यहां तक समझ आ रही है, यस नो में आंसर करिए, फटाफट 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 यस नो में आंसर करिए। वेरी गुड, जितने लोगों को यहां तक मेरी बात समझ आई हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि आप चैट बॉक्स में ही करेंगे, मुझे पता है आंसर। वेरी गुड, मानव कह रहा है, खुशी खेती जी कह रहे हैं, बाकी किसी का रिस्पॉन्स, हाँ जी प्रभजोत कह रही है, वेरी गुड, जैक और ऑल्सो। ओके, अब मेरे बच्चा, अब मैंने क्या किया, आई एम जस्ट गोइंग टू इलैबोरेट दिस कॉन्सेप्ट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर itself। Now I'm just going to elaborate this concept here। My dear respected students, kindly concentrate here। What I am just going to do here, I just going to hit the enter and mention the same thing here, and mentioning I is equal to, that is a list 1 I minus 1, sir, okay fine। Now what I am just going to do here, अब ये क्या करता जाएगा, ध्यान से देखिए, अब इसने पहली बार चला, इसने आगे मूवमेंट किया, अब दूसरी बार चला, इसने क्या किया, इस जगह पे मूवमेंट किया, अब तीसरी बार चला तो इसने क्या किया, 2 को मूव किया ऑन दैट पर्टिकुलर लोकेशन, हियर इट इज, इट सेज दैट इट इज सपोज्ड टू बी स्टोर्ड हियर इन 2। फिर दोबारा जब चला तो इसने क्या किया, इस जगह से 1 को उठाया और यहाँ पे स्टोर कर दिया। नाउ दे हैव रीच्ड टू अ इंडेक्स पोजीशन दैट इज 0। So what we are going to do here, what we are expecting here in that particular step number 6 here, what they are going to do, when they reached at index 0, then pass the value of वेरिएबल एंड टू इट, तो उसको आप क्या करिए, वो पास कर दीजिए। अब मैंने क्या किया, what I am going to do here, I just come out from the loop here and I just mentioned here list index value is 0 is equal to n, and what we are going to store here in and we have stored the last value of list, and as per our example we have stored that particular value which is to be considered as a 5 here, and they have just inserted that 5 here, and what they do here, after that what we are going to do, we are just going to print that particular list 1. I'm just going to hit the F5 here, entering that value 2, 3, 4 and 5 here, and hit the enter key, and the expected output or the desired output is supposed to be displayed on the screen। जितने बच्चों को, मेरे बच्चों को समझ आया, हैंड रेज करिए फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मानव का तो हैंड रेज हो गया, वेरी गुड, जयकौर जी का भी हो गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड
यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं एक जने को बोलूंगा, अच्छा एक जने को बोलूंगा, कृपया करके सुनिएगा मेरी बात। मानव जी अनम्यूट करिएगा। मानव, यस सर। मानव अब क्लियर है आपको ये क्वेश्चन बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही इसके यस अंदर आपको? यस सर, नो और प्रॉब्लम पहले सर। पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको जब आपको ये एग्जाम्स में आया था? तो क्या दिक्कत महसूस हो रही थी आपको? सर वो मैंने गलत प्रोग्राम लिख दिया था, वो सर मैंने एक याद किया था, वो गलत था वो। अच्छा, याद मत किया कर प्रोग्राम्स को, ठीक है? सॉरी सर। लॉजिक 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 इज रिक्वायर्ड इन प्रोग्रामिंग। याद करने वाला छोड़ दीजिए। अकुल जी अनम्यूट करिए। यस सर। अकुल, आप फिफ्थ वाला, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि हम डिस्कस करें, यहाँ क्या दिक्कत आ रही थी उसमें जब आप एग्जाम में कर रहे थे? नहीं सर, मैंने नहीं कहा फिफ्थ वाला। हट जा तू, तो मैं तेरे को बताऊं, तूने नहीं कहा फिफ्थ वाला? तूने कौन सा कहा है फिर? तूने कोई भी नहीं कहा, सर तो मैंने सारी 12th कहा था। तेरे मैं चेक करके बताता हूँ फिर तेरे, कोई बात नहीं। ओके, वेरी गुड। जिन लोगों को ये वाला आ गया दोबारा से एक बार हैंड रेज करिए और चैट बॉक्स में डालिए। अब नेक्स्ट वाला कौन सा शुरू करें? एक बार सबसे पहले हैंड रेज कर दीजिए फटाफट जिनको ये समझ आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। प्रभजोत का हैंड रेज आ गया मेरे को। अरे वाह, काफी लोगों का आ गया भाई। मानव, खुशी, वेरी गुड। जैक, और वेरी गुड। और चैट बॉक्स में डालो, वेरी गुड, थैंक यू। और चैट बॉक्स में डालिए कि कौन सा नेक्स्ट वाला एक्सपेक्ट कर रहे हो। वैसे तो मेरे पास 12th वाला बोला हुआ है आप लोगों ने, मैं 12th वाला भी कर रहा हूँ, बट कृपया करके मुझे एक बार चैट बॉक्स में फिर दोबारा से मेंशन कर दीजिए। वेरी गुड, आई एम स्टिल वेटिंग, आई एम स्टिल वेटिंग। वेरी गुड। अरे वाह, जशन का आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आर्ची, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। It's clear now that students want that I am supposed to discuss the question number 12 here. Okay, no problem with that, no issues with that. बेटा सबसे पहले ना सीखने की क्षमता रखिए। सीखने की क्षमता का अर्थ मेरा ये है that first of all you have the caliber that we are going to learn things, and in second way when we are going to discuss something without interaction nothing is going to be discussed here. ओके, सो कृपया करके ध्यान दीजिएगा प्लीज। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से सबसे, कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करने की कोशिश करिए। मेरे बच्चा आर्ची अनम्यूट करना अपने आप को। यस सर। मेरी बेटी को इसमें क्या नहीं समझ आया, थोड़ा सा मुझे एक बार गाइड करिए प्लीज। सर वो एग्जाम कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन था, स्टेटमेंट पढ़ के ही थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया था। अरे क्यों हुआ? अच्छा, ये कंफ्यूज क्यों हुआ? सॉरी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप मुझे रुकिएगा मत, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम ये CSV वाली फाइल्स की जब हम प्रोग्राम्स कर रहे थे उस टाइम पे शायद आप तबीयत ठीक नहीं थी या कुछ ऐसा था, मुझे लगता है कि जो आप अटेंड नहीं कर पाए, इसी कारण यस थोड़ा सा, सर, है ना, यस इसी सर। कारण मेरा दिमाग को चक्कर आ गए जब ये क्वेश्चन देखा तो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। चलो हम डिस्कस करते हैं। यार मेरे से जो लड़ा हुआ है उससे मैं माफी मांग लेता हूँ, मुझे माफ कर देना अगर मेरे से कोई गलती हुई है। पर आप जब मैं आपको बुलाऊं तो आप इंटरेक्शन कीजिएगा, ठीक है? अगर कोई मुझसे गलती हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ आपसे। ओके, हियर इट इज, इट सेज अ CSV फाइल। यार सबसे पहले अनम्यूट करके बताओ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSV। वेरी गुड। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। अरे वाह, देखो एक ने तो मुझे माफ कर दिया, प्रभजोत से, मेरे से जो गलती हुई थी प्रभजोत ने मुझे माफ कर दिया, उसने अनम्यूट कर दिया, थैंक यू वेरी मच। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। यहाँ कहता है अ CSV फाइल दैट इज अ बुक डॉट CSV हैज स्ट्रक्चर, दिस इज अ बुक नंबर, बुक नेम, ऑथर एंड प्राइस। और अब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? अब जो मुझसे दूसरा जो जिसने मुझे माफ किया है वो मुझे बता दे एक बार कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या मेंशन करती हैं। वेरी गुड, अनम्यूट करके, ऐसे नहीं। लिस्ट। अरे वाह, कईयों ने माफ, नुपुर ने भी कर दिया मुझे माफ और अनिरुद्ध ने भी कर दिया, अभी बाकी है, मना लूंगा, कोई बात नहीं। दिस इज द लिस्ट हियर, वेरी गुड। ओके, नाउ व्हाट आई जस्ट वांट टू इलैबोरेट हियर वन थिंग, डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट CSV फाइल हियर फॉर रीडिंग। अब मैं दो चीजें लिख रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा गाइड करिएगा, मुझे आती नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। रीडिंग एंड राइटिंग हियर। बेटा मुझे यहाँ पे बताना, जब मैं CSV फाइल से रीड करना चाहूं तो यार रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? जो मुझसे, अब मुझे जिसने माफ कर दिया वो बोलेगा। वेरी गुड।
अनम्यूट करके, रीडिंग रीडिंग के लिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी, Reader. अरे वाह, खुशी ने भी माफ कर दिया यार, 4-5 लोगों ने तो माफ कर दिया मुझे। दैट इज अ रीडर फंक्शन हियर, दैट वी टॉक अबाउट अ रीडर। अच्छा, आप कोई और बोलिएगा। राइटर के लिए, राइटिंग, अगर हमने सीएसवी फाइल के अंदर राइट करना हो तो कौन से फंक्शंस का प्रयोग करते हैं? मुझे लगता है कि हम लोग मल्टीपल फंक्शंस का प्रयोग करते हैं वहां पे। देखिए ना, बताइए, कोई बताएगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट। अच्छा, इतने लोगों ने माफ किया मुझे, बाकियों ने नहीं किया है ना, बाकी अभी भी गुस्से हैं मुझसे। अकुल, आप करेंगे अनम्यूट अपने आप को? नो बोल दीजिए, चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जैक और राइटर। अरे वाह, ये किसने बोला राइटर? अरे वाह, अनिरुद्ध तो मेरा साथी है। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन हियर, ये मेरा कीबोर्ड है, थोड़ा सा अच्छा है, मेरा साथी है, तो राइटर फंक्शन हियर। अच्छा, राइटर के अलावा भी यार कोई एक और होता था, कौन बताएगा? राइट के बाद आर आता था, राइट लिखने के बाद आर। Sir, right row and right rows. अरे वाह, क्या बात है। मैंने लिखा राइट रो, मेरे बच्चों ने लिखा और लिखा राइट रोज, राइट रोज। ये क्या कहता है? आरती जी आप सुन रहे हैं, मुझे लगता है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सुन रहे हैं। राइट रो इज यूज्ड टू राइट अ सिंगल रो, is used to write a single row, whereas when we talk about right rows, then we are talking about that it is used to write multiple rows। इसका मल्टीपल का मतलब हो गया एक से ज्यादा। आर्ची सुन रहे हैं आप? यस और नो में आंसर कर दीजिए प्लीज। यस सर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अब नेक्स्ट टास्क क्या आया? अब जो हमने एक्चुअल परफॉर्म करना, अभी तो ये थ्योरेटिकल सेक्शन था जो हमने यहाँ डिस्कस किया। इट सेज राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट फाइल। ठीक है, कहता अब क्या करें सर? कहता आप इसको थोड़ा सा साइड पे कर लें। कहता हाँ जी बिल्कुल कर लीजिए, आपकी जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंग तो कर लीजिए आप। अब मैंने क्या किया, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन दैट पर्टिकुलर हियर, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग द कंटेंट हियर। बेटा ध्यान से सुन लेना, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और जहां पे प्रॉब्लम आए मुझे बता देना, मैं आपके लिए बैठा हूं यहाँ पे। सिर्फ वैसे ही मत सुनते रहिएगा कि हम सुन रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। अकुल ने नो सर कर दिया चैट बॉक्स में। चलो अब देखिएगा, सबसे पहले मुझे ये कहता है दैट वी आर सपोज टू, अच्छा एक और चीज भूल गया आपसे पूछना, जब भी whenever we are talking about a CSV file here, so first of all we are supposed to import a module which is to be called as a CSV। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा, import CSV here, CSV। आप अगर ये import CSV लिखेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, हर एक बार फंक्शन के साथ आपको CSV मॉड्यूल लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा फ्रॉम CSV import asterisk। अब इसका मतलब क्या है, there is no need to write CSV again and again with that function। Okay, so what we are going to do here, it is, it says that create a function। अब फंक्शन का नाम क्या था भाई? फंक्शन का नाम है, मैंने यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर लिया, क्रिएट फाइल। अब इसका मतलब क्या था, टू इनपुट data for a record and that data is being inserted in a file that is to be called as a book.csv। अब मेरे बच्चों मैंने क्या किया, प्लीज इधर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा obj1 is the object, file is going to be opened, and when we talk about opening a file, it says that sir I am just going to open a file that is a book.csv, and for what purpose I am just going to open that particular book here, I am just going to open that book is for which purpose, reading or writing। कोई बताएगा यहाँ पे CSV में राइट के लिए क्या लिखते हैं, W लिखना है कि WB लिखना है? Sir, W. WB नहीं लिखना ना ऊपर, B का मतलब क्या होता है वैसे? Sir, binary file. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा W, सिर्फ W लिखा जो नुपुर ने मुझे गाइड किया। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट चीज लिख दी, मैंने लिखा here it is, it says that the next thing what we are going to mention here, that is a new line। कोई मुझे बताएगा जरूर इसके बारे में भी, न्यू लाइन इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने यहाँ मेंशन किया और मैंने इसको क्लोज कर दिया। अभी यहाँ पे ना कोई एरर आ रहा है, कोई थोड़ा सा गाइड कर दे कि क्यों आ रहा है ये एरर, किसी को थोड़ा आगे। ओके डन हो गया।
ये न्यू लाइन के बारे में कौन बताएगा? वेरी गुड, जल्दी से बोलिए फटाफट, वेरी गुड। सर लाइंस के बीच में एक्स्ट्रा लाइन हटाने के लिए है। एक्स्ट्रा लाइन हटाने के लिए, जिसको हम बोल देते हैं कैरेज रिटर्न, या फिर न्यू लाइन हम जिसको बोलते हैं, उसको हटाने के लिए हमने ये लिख लिया। ओके, अब सबसे पहला टास्क है, मेरे बच्चे जो आर्ची मुझसे क्वेश्चन पूछ रही है और बाकी लोग भी पूछ रहे हैं, ये नाम जो मैं प्रयोग कर रहा हूं ये मेरी आदत में शामिल है। आपको जरूरी नहीं है कि w_obj1 ही लिखना। अब मैंने क्या किया, आई एम जस्ट यूजिंग अ फंक्शन दैट इज अ राइटर and I am just going to mention and I just creating a writer object। मेरे बेटा मैंने एक राइटर ऑब्जेक्ट बना लिया, मतलब एक पेन ले लिया जिससे अब मैं डाटा राइट कर सकता हूं किस फाइल के अंदर, book.csv के अंदर। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम। ओके, अब इसने मुझे यहाँ पे, अगर आपने क्वेश्चन में देखा, जो आपने ये स्ट्रक्चर रीड किया, ये कहता है कि यहाँ पे है दिस इज अ बुक नंबर, दिस इज अ बुक नेम, ऑथर एंड प्राइस। तो मैंने इसको क्या किया, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दैट पर्टिकुलर कंटेंट एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, मेंशन w_obj1 एंड आफ्टर दैट डॉट राइट रो। क्योंकि मैंने अभी आपसे विचार किया कि ये करता क्या है, राइट रो इज सपोज्ड टू बी राइट अ सिंगल रो हियर, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज दिस and I'm just going to insert double quotes here. Why so? Because this is to be considered as a part of a string here. So what we can do, we just mention in such a way here. Okay, this is author here and this is price here. Okay, great. And now one thing is happening here, that we have inserted one row here within that particular file here, and it says yes, this is to be considered as a, this is to be considered as our first row, which is supposed to be stored in a file that is the book.csv। आरती एक बार अनम्यूट करके बता दे, यहां तक समझ आ गया पुत्र? हाँ आरती जी सर। क्या समझ आया, एक बार थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, ऊपर से नीचे तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, बोलिए। आर्ची ये क्या है, सब बताइए मुझे, ये क्या लिखा है मैंने? फ्रॉम CSV import aesthetic, क्या है ये इसका इसलिए मतलब? लिखा है कि अगर मतलब आप import CSV अकेला लिखते तो वो हमें बार बार यूज करना पड़ता। फिर हमें यहाँ पे बार बार, ये देखिए हम यहाँ पे राइटर कर रहे हैं, हमें ऐसे मंशे करना पड़ता CSV डॉट राइटर अगेन एंड अगेन, ठीक है, राइट रो के साथ, और बाकी जितने भी फंक्शन है सबके साथ लिखना पड़ता। तो हमने ये कर लिया। अच्छा, अब ये लाइन के, इस लाइन से क्या समझ आया आपको, आर्ची बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, घबराइए मत, बोलिए क्या लिखा है इस लाइन के अंदर। मानव, मानव अनम्यूट करिए, बताइए इस लाइन का मतलब क्या है, ये जो लाइन लिखी हुई है हमने, जो सिलेक्टेड है लाइन। यस सर, सर हमने इसमें सर book.csv नाम की जो फाइल है सर उसको ओपन किया है सर। किस मोड में ओपन किया है बेटा? सर राइट मोड में। और ये न्यू लाइन मैंने क्यों लिखा है बच्चे? सर न्यू लाइन ऐड करने के लिए। न्यू लाइन ऐड करने के लिए नहीं, न्यू लाइन को एलिमिनेट करने के लिए, जो अपने आप आती है बाय डिफॉल्ट। in that case we can eliminate that with the help of this new line, and here it is, we can mention it as a double quotes, it means they are going to eliminate that particular। okay, जशन नेक्स्ट बता, नेक्स्ट लाइन का मतलब क्या है जशनप्रीत? जशनप्रीत जी अनम्यूट करिए। सर हमने इसको राइटर ऑब्जेक्ट कंसीडर किया। राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। प्रभजोत ने भी बोला था, प्रभजोत उससे नेक्स्ट लाइन को बता क्या है इसका मतलब, गाइड कर। ये वाली लाइन जो हमने लिखी है यहाँ पे। सर ये हमारी फर्स्ट रो क्रिएट हो गई है, जिसमें बुक नंबर, बुक नेम और ऑथर एंड प्राइस है, उसके अंदर वो आ गया, वो सारी चीजें आ गई, ठीक है। अब मैंने एंटर हिट किया, अब मैंने ना यहाँ पे एक मैंने मेंशन किया, हियर इट इज अ डाटा इज इक्वल टू अ लिस्ट। मैंने एक लिस्ट ले लिया, और अब मैंने क्या किया बेटा, मैं मूव कर रहा हूं, दैट इज इन infinite loop here। why so? because we need that values which is supposed to be enter within a book.csv। तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए बुक नंबर। तो मेरे बच्चों मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा अगर मुझे बुक नंबर चाहिए, मैंने लिखा int here, आफ्टर दैट देयर इज अ इनपुट, मैंने सिंपल यहाँ पे मेंशन कर दिया
बुक नंबर, मैं ज्यादा टेक्स्ट टाइप नहीं कर रहा हूं, मैंने एंटर हिट किया। सेकंड चीज मेरे पास क्या चाहिए, दैट इज बुक नेम। आई एम जस्ट गोइंग टू एंटर हियर input and mention it as book name is equal to enter here। थर्ड मेरे को क्या चाहिए, that is the author, author is equal to, again there it is, I'm just going to mention it as author name। मैंने नेम ऐड कर दिया इसमें कि आपको समझ आए, author का नाम भी आ गया। अब प्राइस चाहिए मुझे, PRICE is equal to, मेरे बच्चों मैंने लिखा float here। अब मैंने क्या लिखा, float is a data type and then we can mention it as a input। अब मैंने लिखा price, और मेरे बच्चों मैंने यहाँ पे आके, अच्छा price, PRICE, मैंने price लिखा, और what I am going to do here, I just going to hit the enter। अब मेरे बच्चों मेरी सारी कहानी आपको समझ आ गई कि मैंने डाटा को क्या किया, I am just going to accept that data from the user। अब मैंने यूजर से मांगने के बाद इसको किसके अंदर डालना है, ये जो लिस्ट मैंने ली है डाटा, डाटा नाम की जो लिस्ट ली, अब मैंने क्या किया, मैंने मेंशन किया डाटा, इसको इसके अंदर डालने से पहले मैं एक और लिस्ट ले लेता हूं। मैंने फॉर एग्जांपल डाटा 1 इज इक्वल टू, अब मैंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे डाला दैट इज अ बुक नंबर कॉमा बुक नेम कॉमा AUTHOR author कॉमा एंड आफ्टर दैट इज अ प्राइस हियर। वो मेरा प्राइस ज्यादा बढ़ जाता है ना इसलिए। चलिए अब मैंने यहाँ पे किया प्राइस, और अब मैंने लिखा here it is a data dot append here and what we are going to do here, I just enter that particular data here। अब मेरे को एक बार अनम्यूट करिएगा जाने से पहले क्योंकि समय कुछ कम है यहाँ पे। मेरे बच्चों मुझे जैक और बताएगी, जैक और थोड़ा सा गाइड कर दीजिए अनम्यूट करके कि ये क्या पर्पज है इसका, फटाफट जरा जल्दी से गाइड कीजिएगा। सर ये डाटा में लिस्ट एंटर करने के लिए हमने बुक नंबर, बुक नेम, ऑथर और प्राइस लिया है। वेरी गुड। और ये वाइल ट्रू क्यों किया है मैंने, क्योंकि मैं बार बार न्यू वैल्यूज एंटर करवाना चाहता हूँ, इसलिए तो नहीं लिया कहीं मैंने ये चीज। सर ये लूप चलाने के लिए लिया है। लूप चलाने के लिए है कि वो बार बार मुझे ये यूजर से ये वैल्यूज मांगे और उनको इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करे और बाद में इन सबको एक एक करके लिस्ट की फॉर्म में स्टोर